Unselected Indian 11 versus the Pakistan 11 currently playing in the Asia Cup. Let's compare who's better at each position. Way too much has been spoken about the India-Pakistan game and nothing of that has been about cricket. करे भी तो कैसे करे? There is an enormous gap between both the teams and it seems nearly impossible for the Pakistanis to fill it at this point in time. Credit has to be given to how Indian cricket is set up. So without wasting any further time, let us delve straight into this comparison. तो ये हमारी अनसिलेक्टेड इंडियन 11 फॉर एशिया कप, जिसको हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की करंट 11 जो भी एशिया कप खेल रही है. लेट्स कंपेयर पोजीशन बाय पोजीशन. स्टार्ट करते हैं ओपनर से. साइम आयूब वर्सेस यशस्वी जायसवाल. तो सबसे पहले आईपीएल और पीएसएल के रिकॉर्ड्स कंपेयर करते हैं. आईपीएल में जायसवाल ने खेली है 66 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 34.38 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 152.85. 2 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं आईपीएल में. और ये कंपेयर करें हम आयूब के पीएसएल रिकॉर्ड से, तो उसने 40 इनिंग्स खेली है पीएसएल में, 24.35 एवरेज एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 145.59. T20 इंटरनेशनल्स के स्टैट्स भी देख लेते हैं. Jaiswal has played 22 innings, 36.15 average, 164 strike rate. Awesome strike rate and also has an international century in T20 eyes. Saim Ayub का stats देखें तो 41 innings he has already played. He has played more innings in international than PSL with an average of 20.92. So the average drops from PSL to international and a strike rate also drops from 145 to 136. Overall, there is no comparison. Jaiswal is far better and he's still not selected for the Asia Cup. On to our second opener, that is Rituraj Gaikwad and we are comparing him with Sahibzada Farhan, जिन्होंने एक बहुत ही धीमी एंकर इनिंग्स खेली इंडिया के साथ 14 सितंबर को. ऋतुराज गायकवाड़ ने 20 T20I इनिंग्स खेले हैं और साहिबजादा फरहान ने 22 इनिंग्स खेले हैं. एवरेज है गायकवाड़ का नियरली 40 का और फरहान का है 20 का. स्ट्राइक रेट ऋतुराज की है 143 की, फरहान की है 123 की. मुझे लग नहीं रहा है कि इसके आगे कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत भी है. रन्स T20I इंटरनेशनल्स में ऋतुराज गायकवाड़ के हैं 633, 633, कंपेयरिंग दैट विद फरहान्स 447. आईपीएल में ऋतुराज की इनिंग्स है 70 और फरहान की हाफ से भी कम 33. एवरेज 40 का है गायकवाड़ का, फरहान का ओनली 30. Strike rate, Rituraj 137, Farhan at 134. IPL runs 2,500 plus runs for Gaikwad and not even 1,000 runs for Sahibzada Farhan. Rituraj is the clear winner here. अब आते हैं नंबर 3 की पोजीशन पे, जहां पे वील कंपेयर ईशान किशन वर्सेस मोहम्मद हारिस. ईशान किशन के आईपीएल स्टैट्स 112 इनिंग्स, 29.1 average and strike rate of 134.64. He also has a century in IPL. Comparing that to Harris's PSL record, 36 innings, 905 runs, 26.61 average and strike rate is good at 164.54. अब अगर ये ट्रांसलेट करें हम इंटरनेशनल पे, तो in 32 innings, Ishan Kishan played with an average of 25.67 and strike rate of 124.37. There is a dip from IPL to T20I international, which is normal. But if we look at Harris's T20I record, 30 innings, 17.6 average and 138 strike rate. That is a massive dip if we compare his PSL and T20I. Although Haris has a century in T20 International, he is not consistent enough and hence Ishan Kishan is my pick for number 3. Okay, तो नंबर 4 पे हैं सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, जिनका कंपैरिजन हो रहा है फखर जमान से, जो कि एक बहुत ही अच्छे बैटर हैं. ओडीआई क्रिकेट में 200 रन भी बना चुके हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी की इनिंग्स इंडिया के साथ 2017 में सबको याद है. श्रेयस अय्यर ने खेले हैं 47 T20I इनिंग्स और फखर जमान ने खेले हैं 96. इनका सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है. श्रेयस का T20I एवरेज है 30.66 का और फखर जमान का काफ़ी कम 23.56 का. स्ट्राइक रेट दोनों की लगभग सिमिलर, श्रेयस की 136 एंड फखर एट 132. रन्स श्रेयस के 1100 और फखर जमान के 2100 हैं. आईपीएल में श्रेयस ने 132 इनिंग्स खेली हैं एंड फखर जमान एट 97. एवरेज फखर जमान का 30.8 और श्रेयस का 34. स्ट्राइक रेट इन आईपीएल 133 कंपेयर टू फखर्स 142. आईपीएल रन्स श्रेयस 3700 प्लस एंड फखर जमान ऑलमोस्ट 3000 रन्स. This is a very tough contest. I will go with Shreyas Iyer purely on the basis of current form and his ability to perform under pressure, which is a key to all India-Pakistan games. And it has been the key to all India-Pakistan games. चलो नंबर 5 पे कंपेयर करते हैं केएल राहुल अगेंस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ सलमान आगा. देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ कोर्स. केएल राहुल इज वे अहेड ऑफ सलमान आगा. Has played more cricket, but the stats are still way ahead of Salman Agha.
136 IPL innings for KL Rahul, 46.21 average, which is impressive, and strike rate of 136 as well. 5 centuries he already has in IPL. अगर हम ये कंपेयर करें सलमान के PSL रिकॉर्ड से, 35 innings, 22.81 एवरेज एंड 124.14 की स्ट्राइक रेट के साथ, थोड़ा नॉर्मल बिलो एवरेज करियर. इफ वी लुक एट T20 इंटरनेशनल कंपैरिजन, T20 में KL राहुल की एवरेज है 37.75, स्ट्राइक रेट ऑफ 139.12. ही ऑलरेडी हैज 2 सेंचुरीज. और अगर सलमान आगा का T20 रिकॉर्ड देखे तो 25 इनिंग्स, एवरेज 24.6, स्ट्राइक रेट वेरी वेरी बैड ऑफ 113.62. आजकल लोगों के ODI स्ट्राइक रेट इससे ज्यादा होते हैं. Okay, so moving on to the next player. This is going to be Riyan Parag, and his comparison is going to be with Hassan Nawaz. I really thought that Riyan Parag is going to be the weak link in this Indian unselected 11, but now that I'm looking at stats and comparing him with Hassan, I don't think that Hassan makes a very strong case for himself. He is a self-proclaimed all-rounder और इन्होंने PSL में बिल्कुल बॉलिंग करी नहीं, आज तक एक भी विकेट नहीं लिया है. इकोनॉमी 11 की है तो एवरेज तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि विकेट नहीं लिया है. और T20I सैम्पल साइज रियान पराग का इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना नहीं है. 6 ही इनिंग्स खेली है और 106 रन बना चुके हैं. बट मैंने IPL में इनको क्लोजली फॉलो करा है बिकॉज ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, मेरी पसंदीदा टीम. एंड ही हैड अ वेरी नाइस सीजन अ कपल ऑफ ईयर्स अगो. दिस टाइम ही वॉज कैप्टनिंग राजस्थान रॉयल्स एंड ही शोड he blew hot and cold, but whenever he played with good intent and had a good strike rate, and his ability to hit the ball at his will, and his fielding is stupendous. He's a brilliant fielder, hardly drops a catch ever. And because he's young, I am going to stick with the person I thought would be the weak link, but I am going to go with Riyan Parag just because his direct comparison is with Hassan Nawaz. अब आते हैं ऑलराउंडर्स पे. सुंदर वर्सेस मोहम्मद नवाज. लेट्स लुक एट बैटिंग स्टैट्स. सुंदर ने IPL में 45 इनिंग्स खेली है विद एन एवरेज ऑफ 15.48 और स्ट्राइक रेट ऑफ 126.17. बहुत कम है. PSL में मोहम्मद नवाज की एवरेज है 18.08 इन 68 इनिंग्स और स्ट्राइक रेट ऑफ 115. यही अगर हम T20 इंटरनेशनल में देखें तो सुंदर ने 22 इनिंग्स ही खेली है बट एवरेज इज 13.78 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 121.38. मोहम्मद नवाज यहाँ पे 50 इनिंग्स खेल चुके हैं, 17.75 एवरेज एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 133.53. मोहम्मद नवाज इज स्लाइटली बेटर बट अगेन दोनों मोस्टली बॉलिंग ज्यादा करते हैं बैटिंग से. सो लेट्स लुक एट बॉलिंग स्टैट्स. सुंदर इन IPL हैज बोल्ड इन 63 इनिंग्स, taken 39 wickets with an average of 36.82 and strike rate of 28.6. वहीं मोहम्मद नवाज ने PSL में 87 इनिंग्स खेल ली है, 28.71 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट इज 22.5 एंड इकोनॉमी 7.62. काफी बेटर है कंपेयर टू सुंदर IPL. T20I में भी सिमिलर ट्रेंड है, 52 इनिंग्स फॉर सुंदर एंड 23.5 एवरेज, 20.3 का स्ट्राइक रेट एंड अराउंड 7 की इकोनॉमी. मोहम्मद नवाज ने खेली है 70 इनिंग्स, 71 विकेट्स ले चुके हैं विद एन एवरेज ऑफ 22.8. सो ऑब्वियसली स्लाइटली बेटर देन सुंदर. तो यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं पिक करूंगा मोहम्मद नवाज ओवर वॉशिंगटन सुंदर. We already know Indian team's obsession and this modern day T20 cricket's requirement of having a all-rounder who can bat and bowl at number 8, and that is why we have Krunal Pandya in our Indian unselected 11 with Fahim Ashram. I'll be honest, this was a very tough comparison because both of them have really good stats. This is one Pakistani cricketer who's given really tough competition here to this Indian unselected 11. T20I innings 10 for Krunal Pandya, not enough. Fahim Ashram having 47, but now coming to the average, Fahim has an average of 13.13 batting average I'm talking about in 47 T20I innings, whereas Krunal in his 10 innings has an average of close to 25. स्ट्राइक रेट दोनों का लगभग सेम. T20 रन्स 486 है अशरफ के, कृणाल के सिर्फ 124. After looking at the stats which are right here in front of you, it's a close call as I said, but I am going to stick with Krunal Pandya, not because I'm wearing an Indian jersey or because I'm Indian, but I saw Fahim Ashram succumb to pressure and I have seen Krunal Pandya in this IPL played a very major role जिससे RCB ने ये ट्रॉफी उठाई इस बार. बहुत ही इकोनॉमिकल स्पेल्स डाले हैं और अंडर प्रेशर 1-2 अच्छी इनिंग्स भी खेली है, विच शोज कि वो अंडर प्रेशर थ्राइव करते हैं, प्रेशर वाली सिचुएशन में स्टेप अप करते हैं, जो कि एक बड़े इंडिया पाकिस्तान गेम में या एक बड़े एशिया कप या ICC के मल्टीनेशनल इवेंट्स में बहुत जरूरी होता है. एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू स्टिक विद कृणाल पांड्या. अब कंपेयर करते हैं स्पिनर्स को. यूजी चहल वर्सेस अब्रार अहमद. यूजी चहल ने ऑब्वियसली बहुत सारे गेम्स खेले हैं. IPL में यूजी चहल हैज प्लेड 172 इनिंग्स, 221 wickets, average of 22.76 and strike rate of 17.1. Economy भी just about 8, which is impressive in this era. अब्रार के PSL stats only 29 innings, तो ज्यादा कंपेयर करने के लिए है नहीं, but average is around similar to चहल्स,
21.41, स्ट्राइक रेट ऑफ 16.8 एंड इकोनॉमी अगेन सिमिलर। यही कंपेयर करते हैं T20 इंटरनेशनल से। चहल प्लेड 79 इनिंग्स, 96 विकेट्स, 25.09 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 18.3, अगेन 8 के राउंड की इकोनॉमी। अबरार अहमद ने सिर्फ 17 इनिंग्स खेली है, ऑलरेडी 24 विकेट्स ले चुके हैं, 17.29 का एवरेज है, 15.3 की स्ट्राइक रेट विद एन एवरेज ऑफ अराउंड 7। अभी ऑब्वियसली अबरार के स्टैट्स बेटर है कंपेयर टू चहल, बट अबरार ने बहुत ज्यादा कम गेम्स खेले। अगर वो चहल के सिमिलर गेम्स खेल के भी ये स्टैट्स मेंटेन कर सकता है तो ही इज गोना बी फार बेटर देन चहल। बट अभी के लिए आई विल पिक युजवेंद्र चहल ओवर अबरार अहमद। नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं शमी वर्सेस शाहीन। शमी ने आईपीएल में खेली है 119 इनिंग्स विथ एवरेज ऑफ 28.18 और स्ट्राइक रेट 19.5। इकोनॉमी इज स्लाइटली हायर 8.63। ये कंपेयर करते हैं शाहीन के पीएसएल स्टैट्स से। 83 इनिंग्स, 122 विकेट्स ऑलरेडी, 20.31 का एवरेज और 15.2 का स्ट्राइक रेट। इकोनॉमी भी शमी से कम है, अराउंड 8। T20 इंटरनेशनल्स में शाहीन फ्रंटलाइन बॉलर है पाकिस्तान का। 87 इनिंग्स, 109 विकेट्स ऑलरेडी, 22.34 का एवरेज, 17.2 का स्ट्राइक रेट और 7.76 की इकोनॉमी। बहुत ही इंप्रेसिव स्टैट्स है। ये कंपेयर करते हैं शमी के 25 इनिंग्स T20 इंटरनेशनल में, 28.18 एवरेज, 18.8 स्ट्राइक रेट और 9 की इकोनॉमी ऑलमोस्ट। एंड बेस्ड ऑन दिस आई विल बी पिकिंग शाहीन अफरीदी अहेड ऑफ मोहम्मद शमी। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे तेज गेंदबाज की तरफ। मोहम्मद सिराज और हैरिस रॉफ के बीच में होने वाला है ये कंपैरिजन। डायरेक्टली चलते हैं T20 इकोनॉमी के बीच में, और मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी है 7.79 कंपेयर टू हैरिस रॉफ की 8.33। T20I एवरेज मोहम्मद सिराज का 32 का है और हैरिस रॉफ का केवल 21 का है, बहुत ही इंप्रेसिव। विकेट्स T20I में सिराज के पास केवल 14 और हैरिस रॉफ के पास 126। PSL इकोनॉमी ऑफ हैरिस रॉफ इज close to 9.5, 9.3 here, and Siraj's economy is decent, 8.7. He has an average of 30 in the IPL, and Harris has an average of 28.75 in the PSL. Harris's PSL wickets are 83 compared to Siraj's 109 IPL wickets. I'm going to go with Haris Rauf. This is not purely on the basis of statistics. Those statistics also make me inclined towards Haris Rauf, but I have seen him bowl. He's quick, his line and length is good, he's good with the old and new ball, and he can definitely control the middle overs. Siraj definitely has a heart of a lion, as people say. He's a fighter, but in modern day T20 cricket, we have seen him getting less and less effective over the years. I'm going to stick with Haris Rauf. Pakistan cricket is known for their fast bowlers. तो ये हमारी कंबाइंड 11 7 प्लेयर इंडिया के एशिया कप अनसेलेक्टेड स्क्वाड में से और 4 प्लेयर्स पाकिस्तान के करंट एशिया कप स्क्वाड में से। तो स्टैट्स के हिसाब से इंडिया की अनसेलेक्टेड 11 भी पाकिस्तान की करंट 11 को बीट कर सकती है। आप हमें कमेंट्स में बताएं क्या आप इस कंबाइंड 11 से सहमत है और आपकी कंबाइंड 11 क्या है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।